اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیلی راجپوتا کی ملکہ، اس کا دوسرا ناول مہر النساء پڑھا جا رہا ہے۔ آج اس کی تیسری قسط پڑھی جائے گی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام سننے والوں سے کہوں گی کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں اور بہت سارے ناول پڑھ سکوں۔ لائک شیئر بھی کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں کہ اگلا ناول وہ کون سا سننا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ سب کی بہت شکر گزار رہوں گی۔ اب اس ناول کو آگے بڑھتے ہیں۔ واپس آیا تو گھر بہت اجڑا اجڑا سا لگا۔ سلطان صفائی کر تو دیتا تھا مگر اوپر اوپر سے، دل سے نہیں۔ دل سے اور دل لگا کر تو میری چیزوں کا خیال صرف مومو رکھتی تھی۔ سامان نکال لاؤں۔ گاڑی کی چابی سے ڈگی کھول کر سلطان کو ہدایت دیتے ہوئے میں اندر۔ لیونگ روم میں رکھے انڈور پلانٹس مرجھا سے گئے۔ میں نے کوٹ اتار کر صوفے میں پھینکا۔ میں بہت تھک چکا تھا، آخر کتنا بھاگتا تھا۔ مومو سے بھاگنے سے بہتر تھا میں اس کے پاس جاؤں اور اسے سمجھاؤں، یا پھر یوں ظاہر کروں جیسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ یقیناً چند دنوں میں اپنی اس نادانی کو بھول جائے گی اور ہماری زندگی ویسی ہو جائے گی۔ رویوں کی بھی ساختگی تو واپس نہیں آ سکتی تھی، مگر بہرحال میں یہ فیصلہ کر کے لوٹا۔ بڑے دن لگا دیا آپ نے صاحب۔ سلطان میرا بڑا والا بیگ اٹھا کر اندر گیا۔ کوئی آ گیا؟ میں فریج کی جانب بڑھتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھنے لگا۔ ہاں جی، اس نے جیسے دماغ پر زور دیا۔ بھلا سلام تھا، پتہ نہیں یاد ہی نہیں رہا، مگر انہوں نے جی آپ کے جانے کے 2 ماہ بعد تک روز شام صبح ادھر کے چکر لگائے تھے۔ پتہ نہیں جی کیا مسئلہ تھا، ان کے چہرے پہ بڑی پریشانی تھی۔ میں نے انہیں ہر بار بتایا کہ صاحب کے آنے کا کچھ پتہ نہیں، پھر بھی وہ کوئی پیغام دیا تھا اس نے۔ میں نے اکتا کر اس کی بات کہا جی ہاں، 2 ماہ پہلے جب انہوں نے آخری بار چکر لگایا تھے تو ایک کاغذ دیا تھا، لیکن ایک زبانی پیغام بہت بار دیا تھا کہ آپ کا فون آئے تو بتا دوں، مگر جی آپ کا فون ہی نہیں آیا ہے، اس لیے کیا یہ پیغام دیا تھا؟ میں نے پانی کی بوتل لبوں سے ہٹاتے ہوئے قدرے بے چینی سے استفسار کیا۔ پتہ نہیں مومو نے میرے لیے کیا پیغام چھوڑا تھا۔ وہ جی انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو بتا دوں، میں نے بابر صاحب کو اپنی بیٹی کی وجہ سے انکار کر دیا ہے۔ اتنی بار انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے یاد رہ ہی گیا۔ میرے ہاتھ سے پانی کی بوتل چھٹتے چھٹتے بچی۔ کون؟ حیدر آیا تھا صبح شام ادھر؟ حیدر آتا رہا تھا؟ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے سلطان کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں جی، یہی نام تھا ان کا۔ میرے قدموں سے آہستہ آہستہ زمین سرک رہی تھی۔ کوئی لڑکی نہیں آئی؟ نہ جی، لڑکی تو کوئی نہیں آئی۔ وہی حیدر صاحب آئے تھے، ایک خط دے گئے تھے، پھر اس کے بعد نہیں آئے۔ 2 منٹ بعد وہ خط لے آئے۔ میں نے دھڑک دل کے ساتھ خط کھولا۔ وہ حیدر کی ہینڈ رائٹنگ تھی۔ حسان 2 ماہ پہلے مومو میرے پاس آئی تھی، جس روز میں نے تمہیں بابر سے ملوایا تھا۔ اس رات وہ میرے پاس آئی تھی اور جانتے ہو وہ رو رہی تھی۔ حسان میری بیٹی رو رہی تھی، میری مہر النساء رو رہی تھی۔ جانتے ہو اس نے مجھ سے کیا کہا؟ اس نے کہا آپ تانیہ آنٹی کو انکار کر دیں۔ میں نے ہمیشہ خود کو سر کے ساتھ دیکھا ہے، مجھے سر سے الگ مت کریں۔ اور اس نے یہ بھی کہا آپ بہت برے ہیں پاپا، آپ اپنی مومو سے اس کی سب سے قیمتی شے چھین رہے ہیں۔ وہ رو رہی تھی حسان، اس نے روتے ہوئے لگتی ہے زندگی میں پہلی بار مجھ سے کچھ مانگا تھا۔ میں اپنی مومو کو کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ میں نے اسے انکار ہی نہیں کر سکا۔ مجھے میری مومو بہت پیاری ہے۔ وہ کہتی ہے سر کہتے ہیں میں پاگل ہوں۔ حسان میری بیٹی پاگل نہیں ہے، تمہارے معاملے میں وہ ہمیشہ سے ایسی ہے۔ جب اس نے 8 کلاس میں پوزیشن لی تھی تو میں نے اسی روز اسے گولڈ کے ٹاپس دیے تھے۔ وہ خوش ہوئی تھی، مگر اس نے وہ ٹاپس کبھی نہیں پہنے ہیں۔ پھر دوپہر میں تم آئے اور تم نے اسے گھڑی دی، وہ اتنی خوش ہوئی تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس نے اپنی پوری کلاس میں اپنا شاندار رزلٹ کارڈ نہیں بلکہ وہ گھڑی دکھائی، اور وہ گلاب کے پھول جو تم نے اسے دیے تھے وہ آج بھی اس کی کتابوں میں محفوظ پڑے ہیں۔ اور تم کہتے ہو میری مومو پاگل ہے۔ وہ کہتی ہے سر کہتے ہیں تمہیں حیدر پیار نہیں کرتا حسان، میں تو اسے ہمیشہ سے پیار کرتا ہوں۔ تم کتنا جانتے ہو میرے اور مومو کے ریلیشن کے بارے میں؟ تم روز صرف 1 گھنٹہ ہمارے گھر آتے ہو، صرف 1 گھنٹہ، اس لیے تمہیں علم نہیں کہ میں اور مومو روز رات 12-1 بجے تک بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ اس کو گڈ نائٹ کہہ کر میں اپنے کمرے میں جاتا ہوں۔ مومو جانتی تھی تم یہ سمجھتے ہو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خوف تھا کہ تم اس کو محبت اور توجہ بھی اسی لیے دیتے ہو، اس لیے اس نے کبھی تمہاری غلط فہمی دور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ مومو اندر سے بہت بزدل لڑکی ہے، بہت سے لوگوں کو بہت ساری باتیں اس سے ڈر سے نہیں بتاتی کہ کہیں وہ اس سے محبت کرنا چھوڑ نہ دیں، ورنہ میں نے تو سونیا سے بھی زیادہ محبت مومو سے کی ہے۔ اور جانتے اس رات وہ رو رہی تھی، میری سونیا، میری مہر النساء رو رہی تھی۔ میں باپ ہوں، میری مجبوری کو سمجھو۔ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو اس کے سر سے الگ نہیں کروں۔ میں روز تمہارے گھر کا چکر لگاتا ہوں، مگر تم بھاگ رہے ہو۔ تم مومو اور حیدر سے بھاگ رہے ہو۔ اگر تم نے فرار ختم نہ کیا تو مومو کچھ بہت غلط کر ڈالے گی اور میں اسے روک بھی نہیں سکوں گا۔ واپس آ جاؤ حسان، میں مومو کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے اس خط کو اتنی دفعہ پڑھا کہ اس کے الفاظ میرے ذہن پہ حیدر نقش
हो कर रह गए। मुझे लगा मोमो मेरे सामने सोफे पर बैठी है, इसकी कोहनियाँ उसकी गोद में रखे कुशन पर हैं, इसके आर्टिस्टिक हाथों की खूबसूरत उंगलियां इसके बालों में फंसी हैं, इसके आंसू से तर चेहरे पर फानूस की जर्द रोशनी पड़ रही है और वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रही है। मैं एकदम बेचैन सा होकर उठ खड़ा हुआ। अगर हैदर इसे रोता हुआ नहीं देख सकता था तो हसन भी उसे रोता नहीं देख सकता। मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत मोमो से की थी, मगर मैं इससे शादी नहीं कर सकता था। मेरे नजदीक ये गैर फितरी बात थी। मैं इसे मना लूंगा, मैं हैदर को भी समझा लूंगा, यही सोचकर मैं खड़ा हुआ। मुझे लगा शायद वो अभी तक अपने ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठी रो रही हो। उसी वक्त गाड़ी तेज रफ्तारी से दौड़ाते हुए बहुत सी उम्मीद और खर्चात लेकर मैं मोमो के घर गया। इसके गेट के बाहर एक झटके से मैंने गाड़ी रोकी और बाहर निकलकर बेयकीनी से गेट पर लगे ताले को देखा। वहाँ ताला क्यों लगा था? मैंने बेख्तियार बेल बजाई और बजाता चला गया, मगर किसी ने दरवाजा न खोला। जमीन और आसमान मेरी निगाहों के सामने घूमने लगे थे। हैदर, मोमो, आंटी सब किधर चले गए? जब घंटी पर किसी ने दरवाजा न खोला तो मैंने गेट को हाथों से बजाना शुरू कर दिया। मोमो मोमो, मैं उसे आवाज़ें दे रहा था मगर वो ना आई। गेट पीटने की आवाज़ सुनकर साथ वाले घर से मिसेस हाशमी की बड़ी बहू निकल आई। उनको देखकर मुझे कुछ हौसला सा हुआ। हैदर, इसके घर वालों के बारे में कुछ इल्म है आपको? मैं काफी अरसे बाद आया हूँ, ये सब किधर चले गए? हैदर साहब की तो डेथ हो गई है। मैं करंट खाकर पीछे हटा था, किसी ने मेरे कदमों तले से जमीन खींच ली थी। क्या कहा आपने? हैदर की डेथ? मुझे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो यकीनन कोई भयानक ख्वाब था। भला हैदर कैसे बढ़ सकता था? 2 महीने पहले इन्हें दिल की तकलीफ हुई थी। एम्बुलेंस इन्हें अस्पताल लेकर जा रही थी कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। वो मौके पर ही एक्सपायर हो गए थे। वो तासुफ से बता रही थी। मैं फटी फटी निगाहों से उन्हें देख रहा था। मेरा दोस्त, मेरा कजन, मेरा हैदर, जो मुझसे अपनी बेटी की खुशियां मांगने हर रोज मेरे घर आता था, जो कहता था मैं मोमो को रोते हुए नहीं देख सकता, वो हैदर अब नहीं रहा था, वो मर गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। और उनकी बेटी और वालदा, कितनी ही देर बाद मैं बोला तो मुझे अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती सुनाई दी। वो तो चले गए। चले गए? किधर चले गए? मुझे लग रहा था मैं पागल हो जाऊंगा। उनकी वालदा की कोई भांजी आई थी कनाडा से, वो इन दोनों को अपने साथ लेकर कनाडा चली गई। अभी कल ही गए हैं वो लोग। वो वापस कब आएंगे? किसी उम्मीद के तहत मेरे लबों से निकला था, वापस तो नहीं आएंगे, वो तो हमेशा के लिए चले गए हैं। मैं थके थके कदमों से अपनी गाड़ी की जानिब पलट आया। मेरा दिमाग दर्द से फटा जा रहा था। मेरे हाथ मेरा साथ नहीं दे रहे थे। सब कुछ जैसे ख्वाब किसी कैफियत में हो रहा था। मेरे पीछे इतना कुछ हो गया और मैं बेखबर रहा। मैं इतना संगदिल तो नहीं था। और मोमो चली गई। वो क्यों चली गई? मैं कैसे रहूंगा मोमो के बगैर? मोहब्बत तो मैंने इससे बहुत की थी, मगर मैं एहसास कमतरी में मुब्तला था। अपनी बढ़ती उम्र के एहसास कमतरी में मैं नहीं चाहता था कि लोग हम पर हंसे, हमारा मजाक उड़ाएं। मैं डरता था, मैं बुज़दिल था। मोमो को मैंने उस वक्त कहा था कि मैं तो ऐसा तसव्वुर भी नहीं कर सकता, मगर मैंने ऐसा तसव्वुर किया था। मेरे दिल में भी चोर था। अगर चोर ना होता तो मैं भागता क्यों? और हैदर, उसने जान दे दी। इसे दिल की तकलीफ कब से शुरू हुई थी? इस रात से, जब इसने अपनी बेटी को रोते देखा था, या फिर उस रोज से जब वो मेरी जानिब से मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुका था? वो मुझे कहती थी मैं गलत था, वो सही कहती थी कि मैं इससे वैसी ही मोहब्बत करता था जैसी वो मुझसे करती थी, मगर मैं अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार था, बुज़दिल और खुद गर्ज़ और सब लोगों की तरह। और मोमो, जो अपने तमाम तर बुज़दिली के बावजूद मुझसे ज़्यादा बहादुर थी, ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझसे नाराज़ होकर बहुत दूर जा चुकी थी। मोमो गई तो अपने संग जिंदगी की रंगीनियाँ, रोशनियाँ और तितलियाँ भी ले गई। मेरी ज़ात, मेरा वजूद, मेरी ज़िंदगी, सब कुछ बहुत बेकैफ और बेरौनक सा होकर रह गया। रोज़ शाम 6 बजे मैं अपनी गाड़ी आदतन मोमो के गेट के सामने से लेकर जाकर हॉर्न बजाता। फिर अचानक मुझे याद आता कि अब अंदर से कोई छोटी सी लड़की निकल कर ये नहीं कही कि सर आज मेरा टेस्ट है या जल्दी आए सर, मैंने आपके लिए चिकन शाशलिक बनाया है, देर करेंगे तो ठंडा हो जाएगा और फिर आप नहीं खाएंगे। क्योंकि वो लड़की तो जा चुकी थी। मैं वो जल्दी लिए वापस आ जाता, मगर अगली शाम फिर इसके घर चला जाता। फिर ये भूल हर शाम होने लगी। 15.5 बरस की आदत इतनी आसानी से तो नहीं जाती जैसे हर बंदा अपने घर वापस लौटता है। इसी तरह हर शाम मैं इसके घर जाता था। कितने ही महीने बीत गए, मुझे यकीन आ गया कि वो मुड़ी हुई पलकों वाली लड़की वहां से जा चुकी है। जब ये यकीन आ गया तो मैं वो भूल जानबूझकर दोहराने लगा। 2 बरस तक ये सिलसिला चलता रहा। मैंने उम्मीदें लेकर उसके घर के दरवाजे पर जाना छोड़ दिया। मैंने घर में नाश्ता करना भी छोड़ दिया क्योंकि वो मुझे मोमो की याद दिलाता था। मैंने रात का खाना खाना भी छोड़ दिया क्योंकि मुझे सिर्फ मोमो के हाथ का पसंद था। मैंने लिविंग रूम में इंडोर प्लांट्स रखने भी छोड़ दिए। मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया, बस इस बुरी वाली आंखों वाली नाजुक सी लड़की से मोहब्बत करना न छोड़ सका। ये मेरे इख्तियार में न था। फिर मैंने अपनी बेरौनक फीकी जिंदगी में रंग भरना चाहे, वो रंग जो मोमो को पसंद थे, जिनको वो अपनी खूबसूरत उंगलियों से कैनवस से बखेरना चाहती थी। हाँ, वही रंग मैंने अपनी जिंदगी में भरना चाहिए।
पेंटिंग मेरा बचपन का शौक था। जब मैं स्कूल में था तो जापानी एम्बेसी के ज़रिए इनेकाद एक पेंटिंग कंपटीशन में मेरी बनाई गई तस्वीर को पहला इनाम और मुझे बतौर एजाज़ $800 दिए गए थे। वो डॉलर्स मेरी टीचर ने खुद रख लिए थे और वो पेंटिंग मुझे कभी वापस नहीं मिली, क्योंकि वो मेरी प्रिंसिपल की बेटी को बहुत पसंद आती थी। सो प्रिंसिपल साहिबा ने वो इसे गिफ्ट कर दी। कोई इंसान यूं ही दुनिया से बेतबार, बदगुमान और शक्की मिजाज नहीं बन जाता। ये इस किस्म की छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम पर बहुत गहरा नफ्सियाती असर छोड़ती हैं। मैं इस वाक़े से इतना दिल बर्दाश्ता हुआ कि अपना ब्रश तोड़ दिया, ईज़ल और कैनवस जला डाले और रंग फेंक दिए। यूं मैंने वक्ती तौर पर अपने अंदर के आर्टिस्ट को मार डाला, मगर रंगों और तितलियों का देश मुझे वापस अपनी जान में बुलाता रहा। और फिर जब उस रोज़ जब मैंने मोमो को मुसव्वरी करते देखा तो मुझे अब एक अनजाना सा सुकून मिला था। इसलिए तो मैं इसे पेंटर बनने के लिए कहता था और मुझे यकीन था कि वो अपने अंदर के आर्टिस्ट को बाहर निकाल ही लाएगी। वो कनाडा जाकर आर्ट ही पड़ेगी। मोमो की उंगलियां ये बात कहती थी और मेरा दिल ये बात कहता था। मोमो के जाने के तीसरे बरस मैंने एक आर्ट अकेडमी में शाम 6 से 7 ज्वाइन कर लिया। जो वक्त मैं पहले मोमो को देता था अब मोमो के रंगों को दे रहा था। कभी कभार कैनवस पर रंग करते हुए मैं अपने ब्रश को उंगलियों के दरमियान थाम कर सोचती थी कि शायद मोमो भी इस कंपनी और साख का ब्रश इस्तेमाल करती होगी। शायद वो भी रंग करते वक्त गर्दन को यूं नीचे करती होगी। शायद इसके हाथों पर भी मेरी तरह पेस्टल कलर्स लग जाते होंगे। मगर इसके हाथ तो बेहद खूबसूरत थे और मेरे हाथ मेरी शक्ल सूरत की तरह आम से ही थे। 2 सालों तक मुख्तलिफ अकेडमियों में आर्ट पढ़ने और सीखने के बाद मैंने मल्टी नेशनल फर्म की वो जॉब छोड़ दी जिसकी ख्वाहिश लाखों नौजवान करते थे, मगर मुझे अपनी कोई ख्वाहिश न थी या फिर अब रही नहीं थी। जॉब छोड़ने के बाद मैंने अब बैंक बैलेंस और कुछ सेविंग्स को मिलाकर एक जगह कमरा हासिल करके अपनी आर्ट अकेडमी खोल ली। मेरी पेंटिंग्स और मेरी अकेडमी अब मेरे अखराजात पूरे करने के लिए काफ़ी थी। मैं खुश नहीं था मगर मुतमईन और पुरसुकून ज़रूर था। मेरी आर्ट अकेडमी के दूसरे बैच में एक 12 साल लड़की भी सीखने आई थी। उसको देखकर मुझे पता नहीं क्यों मोमो याद आ जाती थी। इसका नाम मारिया था। इसके हाथ और उंगलियों की साख बिल्कुल मोमो जैसी थी और उसकी भूरी आंखें, मुड़ी हुई पलकें और लंबी सी फ्रेंच ब्रेड बिल्कुल मोमो की तरह थी। चेहरे के नकूश, रंग, कद और वो हर लिहाज से मोमो से मुख्तलिफ थी, मगर फिर भी दोनों में बहुत मुमासलत थी। मारिया बातें भी मोमो की तरह करती थी। दूसरों की हमदर्दी में पिघल जाना, किसी के गम को अपना समझ लेना और खुद को फौरन कुर्बानी के लिए पेश कर देना, वो मोमो से बहुत मिलती थी। जब इसने स्केच बनाना सीखा तो पहला स्केच एक पॉलिटिकल लीडर का बनाया। इसका वो स्केच हाथ में पकड़े मुझे मोमो बुरी तरह याद था। वो भी तो ऐसी ही थी, लीडर्स और सियासतदानों को पसंद करने वाली, और ऐसी लड़कियों को मैं बेवकूफ़ कहा करता था। जाने वो क्यों स्केच देखती मेरे लम्हों से मोमो निकला। जी सर, मारिया जो मेरे सामने खड़ी थी कदर हैरत भरी ताबेदारी से बोली। मैंने सर उठाकर उसे देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। कुछ नहीं सर, आपको कैसे पता चला कि मेरा निक नाम मोमो है? इसने कदर झिझकते हुए पूछा। मुझे हैरत का झटका लगा, मगर फिर मैं संभल कर मुस्कुरा दिया। तुम्हारी शक्ल पर लिखा है मारिया। मेरी शक्ल पर? वो मेरी बात पर हैरान होती हुई अपनी जगह पर बैठी। इस रोज क्लास के बाद जब मैं अपनी चीज समेट रहा था, मारिया मेरे पास चली आई। सर एक बात मानेंगे? हाँ बोलो बेटा। मैंने मुस्कुराकर उसे देखा। इसने ब्लू जीन्स के ऊपर आधे बाजू वाली टी शर्ट पहन रखी थी, बाल हमेशा की तरफ फ्रेंच चुटी में कितने। ये हुलिया तो किसी और का भी होता था। मैं याद नहीं करना चाहता था। सर आप मेरा पोर्ट्रेट बनाएंगे? श्योर, क्यों नहीं। इसके हिचकिचाते अंदाज पर मैं मुस्कुराया। कल अकेडमी टाइम के बाद 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठ जाना। कितनी सिटिंग्स होंगी सर? वो मुझे बिल्कुल मोमो की तरह सर कहते हुए आर को साइलेंट करती थी। 2 या 3, मगर मैं गारंटी नहीं देता कि वो बहुत अच्छी होगी। अरे नहीं सर, आप तो बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं। वो हंसकर बोली इस तरह मुझे। अरे नहीं सर, कौन कहा करता था? मैं याद नहीं करना चाहता था। अगली शाम उसको स्टूल पर अपने सामने बिठाकर मैंने जब इसका पोर्ट्रेट बनाना शुरू किया तो आगाज आंखों से किया। इसकी आंखें बनाते बनाते मेरे जहन के पर्दों पर वो मंजर लहराया जब मोमो मेरे सामने टांग पे टांग रखे नामा के लाउंज में आराम से बैठी थी और उठने के मूड में लगी। एक सिटिंग में पोर्ट्रेट मुकम्मल करने के बाद मैं जानते हुए भी पुरसुकून था कि मैंने मारिया का नहीं, मोमो का पोर्ट्रेट बना दिया। बन गई सर? 1 घंटे से स्टूल पर मॉडल बनकर बैठी मारिया चलकर मेरे पास आई। मेरी तस्वीर पर निकट पड़ते ही इसने हैरत से मेरी जानब देखा। कैसी बनी है? बहुत अच्छी है सर, मगर इसमें मैं कहा हूँ। इसके अंदाज पर मैं बेख्तियार हंस पड़ा। तुम्हारी कल बना दूंगा। ये किसी और की है? इसकी है। अपनी मायूसी भुलाए वो इश्तियाक से पूछने लगी। मैंने ब्रश के किनारे को लबों तले दबाए कुछ देर को सोचा। मोमो की है। मोमो कौन? इसने हैरत से मुझे देखा। एक लड़की। मैं उदास सा हो गया। मुझे छोड़कर चली गई है। इधर? वो भी उदासी से पूछने लगी। कनाडा। क्यों सर? वो मेरे पास रखे स्टूल पर बैठ गई। मैंने इसे नाराज कर दिया। मैं सर झुकाए बताने लगा। तो आप मना लेना। मैंने सर उठाकर मखूम अंदाज में मुस्कुराते हुए से देखा। मुझे उसको मनाना नहीं आता। क्यों सर? मैंने इसे कभी मनाया ही नहीं। अब मना लेना। कैसे? मैंने अबरू उठाए। कह दे आई एम सो सॉरी।
सो सिंपल। इसने आराम से कह दिया, हर बात आई एम सॉरी से हल नहीं हो जाया करती मारिया। सर मुझे पूरी क्लास मोमो कहती है। आप मारिया क्यों कहते हैं? वो मेरी आंखों में जाते हुए संजीदगी से पूछ रही थी। मेरी सिर्फ एक ही मोमो थी, बहुत अच्छी फ्रेंड थी वो मेरी। तुम्हारी कोई फ्रेंड है मारिया? मैंने यूं ही पूछ लिया। इसने अफसरदगी से नफी में सर हिला दिया। मेरी कोई फ्रेंड बनती ही नहीं है। अरे वो क्यों? मैंने हैरत से उसे देखा। वो मेरी बात का जवाब देने के बजाय उठकर चली गई। मोमो भी ऐसे ही उठकर चली जाती थी। मैं कभी मोमो के पीछे नहीं गया तो मारिया के पीछे कैसे जाता? अगली शाम मुझे मारिया बहुत चुप चुप लगी थी। छुट्टी के वक्त जब सब बच्चे जाने लगे तो मैंने उसे अपने पास बुला लिया। इधर आओ। मुझे अपना पिंक कलर का बैग लेकर बाहर खुलने वाले दरवाजे की जानी पड़ रही थी। मेरी बात पर सर झुकाए मेरे सामने आ खड़ी थी। बैठो इधर। बैठ गई तो मैंने पूछा, मारिया तुम्हारी मम्मी कब फौत हुई थी? इसके आने से पहले मैंने फातिमा से, जो मारिया के घर के करीब रहती थी, इसके मुतालिक पूछा था। वो चंद लम्हे मेरी जानिब खामोशी से देखती रही। फिर बोली, जब मैं 2 साल की थी तब। और तुम्हारे फादर? वो तुम्हारा ख्याल करते हैं। मुझे पता नहीं क्यों हैदर याद आया था। वो मुझसे ज्यादा सारा मामा में इंटरेस्टेड है। सारा मामा मेरी खाला है। वो कई सालों से मेरे पापा ने बहाने से मिलने, मेरे पापा से मिलने हमारे घर आती थी। वो पापा से शादी करना चाहती हैं और उन्हें लगता है कि मैं छोटी बच्ची हूँ और कुछ नहीं समझती। छोटी उम्र में बड़े बड़े गम महरून और मारिया को बहुत जल्दी संजीदा और मैच्योर कर देते हैं और पापा उनसे शादी कर लेंगे। जी। ये कहते हुए इसकी आंखों में खौफ से मटाया। तुम्हें अच्छी नहीं लगती सारा मामा? वो इसके चेहरे को पढ़ रहा था। बिल्कुल भी नहीं। वो मुझे घर से निकाल देंगी। अरे नहीं मारिया, घर से क्यों निकाल देंगी? तुम्हारे पापा का घर है और भला घर से किधर निकालेंगी? इसने यकीनन सिंड्रेला टाइप की बहुत सारी कहानियां पढ़ रखी थी। आपको नहीं पता है एक जगह वो बड़बड़ाई थी। गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई तो मारी अपना बैग संभाल कर उठ खड़ी हुई। फिर चंद हफ्तों बाद मारी ने मुझे बताया, सर पापा ने सारा मामा से शादी कर ली है। वो इन दिनों बहुत डरी सहमी सी रहने लगी थी। मैंने इसे उम्मीद दिलाई कि सब ठीक हो जाएगा। तब इसने मुझसे एक फरमाइश की, सर आप मेरे घर आए। और मैंने हामी भर ली। हाँ मारिया, मैं आऊँगा तुम्हारे घर। तुम्हारे पापा से बात करूंगा कि वो सारा मामा से ज़्यादा तुम्हें इंपॉर्टेंस दिया करें। वो खुश हो गई। हामी तो मैंने भर ली, मगर फिर इन दिनों किसी दोस्त की शादी में शिरकत के लिए मुझे कराची जाना पड़ गया। मैंने 4 रोज़ अकेडमी की छुट्टी कर दी। 4 बेहद मसरूफ दिन गुजारने के बाद जब मैं अकेडमी आया तो मेरी पूरी क्लास मौजूद थी। माँ सिवाय इस लड़की के साथ वाली कुर्सी बिल्कुल खाली थी। ये मारिया की पूरे साल की पहली छुट्टी थी, इसलिए मैं नजरअंदाज कर गया। लेकिन जब वो पूरा अगला हफ्ता ना आई तो मुझे फिक्र हुई, ये मारिया क्यों नहीं आ रही? मैंने कदरे बुलंद आवाज में किसी को मुखातिब किए बगैर क्लास से पूछा। पता नहीं सर की सदाएं बुलंद हुई। सर आई थिंक इसकी स्टेप मदर ने इसे घर से निकाल दिया है। फातिमा मारिया के घर के साथ रहती थी, इसलिए इसके हालात से इस हद तक वाकिफ थी। घर से किधर निकाल दिया? स्टेप मदर ही है, कोई जादूगर्दी नहीं जो घर से निकाल दे। मैंने कदरे बेजारी से कहा, सर हो सकता है आंटी ने इसे अस्पताल भेज दिया। फातिमा दोबारा बोली, अस्पताल क्यों? मैंने चौंक कर इससे देखा। आपको पता नहीं सर? बहुत से स्टूडेंट्स इकट्ठे होकर बोले। क्या नहीं पता? मैं एकदम परेशान हो गया। सर मारिया को थायराइड ग्लैंड का कैंसर है। व्हाट? मैं बेहद शॉक्ड होकर फातिमा को देख रहा था। मारिया कहती थी इसे कोई दोस्त नहीं बनाता। इसकी वजह ये थी कि वो बीमार थी, जिंदगी से लड़ रही थी। कैंसर कोई छूत का मर्ज नहीं होता, मगर ये हमारे माशरे का अलम है कि बीमार और मासूर इंसानों को तनहा कर दिया जाता है। वो छोटी सी लड़की जो मुझे मोमो की याद दिलाती थी, वो भी इसी अलमिया का शिकार थी। कब हुआ उसे कैंसर? वो फिक्रमंदी से पूछने लगा। काफी अरसे से, अब तो आखिरी स्टेज है। चंद माह पहले डॉक्टर्स ने कहा था कि इसके पास 6 माह से 1 बरस तक का वक्त है। फातिमा के लहजे में तासुब था। मैं सर लाकर बेध्यानी से स्टूडेंट्स की असाइनमेंट देखने लगा। दिल में मुझे बार बार मारिया का ख्याल आ रहा था। पता नहीं वो किधर होगी, किस हाल में होगी। अगर इसकी सौतेली माँ ने इसे घर से निकाल कर अस्पताल भेज दिया हो तो वहाँ इसके साथ कोई होगा, या वो तन्हा कमरे में अपनी जिंदगी के आखिरी दिन काट रही होगी। पता नहीं इसके पास इसके ब्रश, कलर्स और कैनवस भी होंगे नहीं, और इसका वो पिंक कलर का बैग जो वो हमेशा अपने पास उठाए रखती थी, पता नहीं वो बैग इसकी सौतेली माँ ने इसे साथ ले जाने दिया होगा या नहीं। बहुत से सवाल थे जिनके जवाब मेरे पास नहीं थे। मेरा दिल इर्द से सख्त और चाट हो चुका था। मैंने बच्चों की जल्दी छुट्टी कर दी और खुद अपने दाखिला रजिस्टर से मारिया के वालिद की आईडी कार्ड की फोटोकॉपी से इसका एड्रेस लेकर इसके घर चला गया। इसके बेहद खूबसूरत मगर सर्द महर सौतेली माँ ने इंतहाई खुरदर और रुखे अंदाज में मुझे इतना ही बताया, कल सुबह ऑपरेशन है मोमो का, CMH में एडमिट है। मैंने कमरा नंबर पूछकर इस्तफसार किया, इसके पास कोई है या वो अकेली है? सान साहब, हम यहाँ फारिग नहीं बैठे कि मोमो के पायती से लगकर इसका दिल बहलाए। सो काम होते हैं, हमें फुर्सत किसे है? यहाँ 100 काम करने हैं, जब टाइम मिलता है तो चले जाते हैं। अंदाज में लाताल्लुकी और बेनियाजी की वो वाकई स्नो वाइट वाली सौतेली माँ थी। मैं मारिया से मिलने इस्लामाबाद से पिंडी CMH चला गया। सारा ने जानबूझकर इसे पिंडी में दाखिल करवाया था ताकि इसका वापस से मिलने रोज रोज ना जा सके। मैंने ताज़ा सुर्ख गुलाबों का एक बुके खरीदा और अस्पताल आ गया। ऐसे ही एक बुके मैंने मोमो को भी दिया था और हैदर कहता था मोमो ने वो फूल किताबों में सुखा कर रखे हुए थे। मोमो को जहन से झटक कर मैं मारिया के वार्ड की तरफ चला गया। दरवाजा हल्का सा बजाकर मैं अंदर दाखिल हुआ। वो एक दरमियाने साइज का वार्ड था, दरमियान में पर्दों से पार्टीशन किया हुआ था। एक तरफ मारिया का बेड था, दूसरी जानिब का बेड मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मोमो
मारिया बेड पर तकियों के सारे टेक लगाकर लेटी हुई थी। वो छत को देख रही थी। आहट पर इसने निगाहें घुमाकर मेरी जानब देखा। एकदम इसकी बुरी आंखों में हैरतनुमा खुशी उभरी थी। सर आप इधर। उसने उठकर बैठने की कोशिश की। मैंने इशारे से रोका। ये जो उस छोटी सी गुड़िया ने बगैर बताए इतनी ढेर सारी छुट्टियां की है ना, इसके लिए अब इसके सर डांटने आए हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहकर फूलों का गुलदस्ता उसके हाथ में दे दिया। थैंक यू सर। इसने इन्हें सूंघा। वो बहुत खुश और फ्रेश नजर आने लगी थी, वरना जिस पल में दाखिल हुआ था वो बहुत पसमुर्दा लगी थी। इसकी आंखों के टेक हल्के पड़े थे, चेहरा सूख चुका था, गाल अंदर को चले गए थे और रंगत यरकान के मरीजों की तरह सर्द थी। मुझे रेड रोज बहुत अच्छे लगते हैं सर, क्योंकि इनका मैसेज बहुत अच्छा होता है ना सर। वो सर उठाकर मेरी जानिब देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। मेरे जहन की रो कहीं दूर भटक रही थी। ऐसे ही बात मोमो ने भी की थी। मैंने सर झटका। कैसी हो मोमो? मैं इसके साथ बेड पर बैठ गया। ठीक हूँ सर, कल मेरा ऑपरेशन है। उदास हो गई। उदास मत हुआ करो मोमो, तुम मुझे बहुत हंसी हो। मैंने इसका छोटा सा हाथ अपने हाथों में लेकर आहिस्ता से दबाया। सर सारा मामा ने मुझे शुरू से बता रखा था कि मुझे कैंसर है। आपको पता है डॉक्टर्स बच्चों को ये बात नहीं बताते। वो मासूमियत भरे अंदाज में सारा मामा की शिकायत लगा रही थी। पता है क्यों? मैंने भी इसी मासूमियत से नफे में गर्दन हिला दी, क्योंकि जब बच्चों को पता चल जाता है ना तो वो खौफजदा होकर बहुत जल्दी मर जाते हैं। मारिया, मैं एकदम तड़प उठा था। अस्पताल में रहकर वो पता नहीं क्या क्या सोचती रहती थी। कल तुम्हारा ऑपरेशन है, जिसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। फिर हम खूब ढेर सारी बातें करेंगे। कुछ देर बाद उसे तसल्ली देकर मैं उठने लगा था। इसने मायूसी से मुझे देखा। आप जा रहे हैं सर? हाँ, मैं कल आऊंगा मारिया। मुझे अस्पताल से वहशत हो रही थी। मैं जल्द से जल्द वहां से भागना चाहता था। जितना वक्त मारिया के हमले गुजारता मुझे मोमो याद आती रहती थी। आप ना जाएं सर। ओके, नहीं जाता। पता नहीं क्यों मैं दोबारा बैठ गया। कल मेरा ऑपरेशन है, क्या मैं जिंदा रहूंगी सर? वो डरी सहमी हुई लग रही थी। मैं इसके सराहने आकर बैठ गया और दोनों हाथ इसके शानों पर गिर रखे। बस बेटा, एक छोटा सा मामूली सा ऑपरेशन है। मेरे एक भांजे के ऐसे 6 ऑपरेशन हुए थे और अब वो भला चंगा है। मैंने इसे तसल्ली दी, हालांकि मेरी तो कोई बहन ही नहीं थी। इसकी बुरी आंखों में उम्मीद की किरण जागी। ये बस छोटा सा ऑपरेशन है, इसके बाद तुम्हें सब अस्पताल और इन कड़वी कड़वी दवाओं से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। तुम बिल्कुल ठीक होकर घर चली जाओगी। इसके सराहने बैठा है, उसे तसल्लियां दे रहा था। कब है ऑपरेशन? फिर मैंने पूछा। सुबह 6 बजे। इसका खौफ अब कम हो रहा था। बस अब थोड़ा सा टाइम रह गया। मैंने रात के 9:30 बजे आती सुई को देखा। सर, थोड़ी देर बाद इसने मुझे पुकारा। मैं पेंट करना चाहती हूँ। ठहरो, मैं तुम्हें कागज और पेन देता हूँ। मैं उठने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं, बस मुझे मेरा बैग उठाते। इसने अपने पिंक बैग की जानिब इशारा किया जो मेज पर पड़ा था। सच शुक्र इसका वो बैग इसके पास था। मैंने बैग उठाकर उसे दे दिया। इसने आहिस्ता से जिप खोली, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर से ब्रश, वाटर पेंट्स बाहर निकालने लगी। एक कागज को क्लिपबोर्ड में लगाकर इसने पेंसिल थाम ली। मोमो, क्या ये बेहतर नहीं है कि तुम आराम करो? कल तुम्हारा ऑपरेशन है। मैंने किसी खदशे के पीछे नजर कहा। प्लीज सर। इसने इतनी मलतजी निगाहों से मेरी तरफ देखा। ये जिंदगी और मौत की जंग लड़ती इस लड़की की बेबस आंखें थी। मेरा दिल भर आया। अच्छा, बना लो। मगर क्या बनाओगी? इसने पेंसिल का सर लबों में पकड़कर एक लम्हे को सोचा, फिर मुस्कुराई। मोमो, अपनी शक्ल बनाऊंगी। अरे नहीं सर। वो धीरे से इसकी सूखी जर्द चेहरे की हड्डियां हंसते हुए नुमाया हो जाती। मैं नहीं, आपकी मोमो। मेरी मोमो? मुझे हैरत हुई। और फिर वो बवक्त तमाम तस्वीर बनाने लगी। मेरी मैनुनिसा हथेली थोड़ी दिले रखे फातिहाना निगाहों से मुझे देख रही थी। इसने ऐसे मुझे तब देखा था जब नैमा ने मेरे सामने बदजुबानी की थी। आपकी मोमो बहुत अच्छी है सर, आप अपनी मोमो को मना लें प्लीज। तस्वीर बनाते बनाते वो बोली थी। मैं जवाब में कुछ भी न कह सका। काफी देर बाद मारी ने तस्वीर मुकम्मल कर ली। कैसी है सर? इसने मुझसे पूछा था। बहुत अच्छी। मैंने सफेद कागज को हाथ में लिए इस पर बना स्केच देखा। वो 90% मोमो से मुशाबहत रखता था। अब कलर्स करोगी इसमें? नहीं, मैं थक गई हूँ। इसने थकावट से मेरे कंधे पर सर रख दिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसका सर थपकने लगा। जब वो नींद की आगोश में जाने लगी तो उसके लबों से निकला था। मैं जिंदा रहूंगी ना सर? मेरी मोमो को कुछ नहीं होगा, मैंने कह दिया, मगर मेरे अंदर बहुत खौफ था। सारी रात मैं इसके पास बैठ के कुछ से टेक लगाकर बैठा रहा। वो छोटी सी बच्ची मेरे कंधे पे सर रखकर सो रही थी। रात आहिस्ता आहिस्ता सिरकने लगी। वो नींद में थी जब डॉक्टर्स उसे लेने आए। मैं अब एक अटेंडेंट बन गया था। उन्होंने इसे नींद में ही एनेस्थीसिया दे दिया। हालांकि मेरी ख्वाहिश थी कि वो इसे जगा देते और मैं चंद एक बातें मारिया से कर लेता। मैंने मोमो का स्केच जो मोमो ने बनाया था अपनी जेब में डाल लिया। मुसलसल 3 घंटे मारिया का ऑपरेशन होता रहा। 3 घंटे में अस्पताल के सर्द वीरान कॉरिडोर में मैं टहलता रहा, बेचैनी से टहलता रहा। मेरे करीब से आर्मी यूनिफॉर्म में मलबूस नर्सें और डॉक्टर्स गुजरते रहे तो कोई मेरी परेशान सूरत देखकर तसल्ली के 2 लफ्ज बोल देता तो कोई तरहम भरी निगाह डालकर चला जाता। बिला आखिर में थक कर मार्बल से बने फर्श पर दीवार से टेक लगाई बैठ गया। सर्दी का कोई एहसास मुझे नहीं हो रहा था। मेरा रुआ रुआ मारिया के लिए दुआ। 3 घंटे का वो तवील इंतजार बमुश्किल कट ही गया और ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोला।
कर्नल डॉक्टर आबिद बेग बाहर निकले। आप बच्ची के वालिद हैं? उन्होंने चेहरे पर से मास्क और हाथों से ग्लव्स उतारते हुए मुखातिब किया। नहीं, मगर मैं उसका अंकल हूँ। कैसी है वो? मैंने धड़कते दिल के साथ पूछा। देखिए, इसका थायराइड ग्लैंड रिमूव करना था। थायराइड ग्लैंड के पीछे एक नर्व होती है। और मुझे बताएं मारिया कैसी है? मेरी बेचैनी से उनकी बात करती उन्होंने गहरी सांस ली। वो जो खास रग होती है ना, वो इनके ऑपरेशन के दौरान कट गई है। आई एम सॉरी, मारिया की डेथ हो गई है। दरअसल इस रग को कटने से बचाना बहुत मुश्किल था। वो क्या कुछ कह रहे थे, मैं सुन नहीं पा रहा था। मुझे सुनाई ही नहीं दे रहा था। बहुत कुछ मेरे जहन में गुटमुट हो रहा था। मेरी क्लासरूम में खिड़की के साथ रखी वो कुर्सी खाली थी। वो कुर्सी मारिया का इंतजार कर रही थी और डॉक्टर कह रहा था मारिया मर गई, मारिया की डेथ हो गई। बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर हाशमी की बहू ने कहा था, हैदर की डेथ हो गई, हैदर मर गया। बस एक लफ्ज का नाता था जिंदगी और मौत के दरमियान। वो मर गई, वो मर गया। क्यों कुदरत इतनी जालिम होती है? मारिया को क्यों मार डाला? क्या मांगा था इस लड़की ने जिंदगी से सिवाय अपने रंगों खुशबू और तितलियों के? वो क्यों मर गई? मेरे सामने स्ट्रेचर पर इसकी मैयत सफेद चादर से ढकी पड़ी थी। मैंने लरसती उंगलियों से चादर का सर उठाकर इसका चेहरा देखा। सफेद साकेत चेहरा। कितनी उम्मीद दिलाई थी मैंने इसे, कितने झूठ बोले थे मैंने इसे, कितनी बार कहा था तुम बच जाओगी मोमो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, और वो मुझ पर यकीन करके कितने सुकून से ऑपरेशन थिएटर चली गई थी। कई बरस हुए एक मोमो मुझसे नाराज होकर चली गई थी और आज एक दूसरी मोमो मुझसे दूर जा चुकी थी। क्यों मुझे सब छोड़कर जाते हैं? मैं हमेशा आखिर में तन्हा क्यों रह जाता हूँ? मारिया के चले जाने के बाद मैंने किसी और को इस खिड़की के साथ वाली कुर्सी पर बैठने की इजाजत नहीं दी। वो कुर्सी खाली रही। मुझसे मेरे स्टूडेंट्स ने कभी मेरे समल की वजह दरियाफ्त नहीं की। एक बैच खत्म होता तो दूसरा आ जाता। मध्यम सरगोशी में पुराने तलबा नए आने वालों को आगाह करते, ये मोमो की सीट है, वो कैंसर से मर गई थी, ये इसकी जगह यहाँ किसी ने नहीं बैठना, सर को दुख होगा, और नए तलबा समझकर सर हिला देते। मारिया की मौत के 3 बरस बाद जब मैंने क्लास का फर्नीचर बदलवाया तो कुर्सी वहां से नहीं उठवाई, खिड़की के साथ वो वैसी ही पड़ी रही। इस दौरान मैंने एमफिल करके आर्ट के शोबे ही को पीएचडी के लिए मुखातिब किया, अपना पीएचडी के लिए मुंतखब कर लिया उस शोबे को। जब पीएचडी मुकम्मल हुआ तो मैंने यूनिवर्सिटी में बतौर आर्ट डायरेक्टर के ज्वाइन कर लिया। मेरी एकेडमी अब भी जारी थी और खिड़की के साथ वाली कुर्सी अब भी खाली थी। मोमो और मोमो की कुर्सी मेरी एकेडमी में लीजेंड की हैसियत इख्तियार कर चुकी थी। सियाह मग में 2 कप के बराबर कॉफी फेंट कर मैंने आज़र्दगी से उसे देखा था। इन तमाम पिछले बरसों में मैं रोज सुबह 2 कप कॉफी फेंट करता, एक अपने कप में दूध और चीनी डालकर पीता, जबकि दूसरे कप में फेंटी हुई कॉफी रहने देता। शायद कि वो पलट आए, मगर हर दिन के अख्ताम पर जब मोमो कहीं ना होती तो मैं बेहद मायूसी से इसकी कॉफी सिंक में बहा देती। आज मैंने कॉफी इसके कप में डालने से पहले ही बहा दी। अब क्यों और किसका इंतजार करूं? 11 बरस किसी को भूलने के लिए काफी होते हैं। वो क्यों वापस आएगी? क्या रखा है इसके लिए? मैंने तहिया कर लिया था कि आइंदा इसकी कॉफी नहीं बनाऊंगा। वो अब नहीं आएगी, वो कभी नहीं आएगी। शायद दूध वाला हो। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोलते हुए बाहर निकलकर देखना चाहा, मगर एक लम्हे को जमीन ने मेरे कदम जकड़ ली। मेरे सामने, मेरे घर के बाहर, मेरे दरवाजे पर मोमो खड़ी थी। मोमो, मेरी मोमो, मेरी मेहरुन्निसा। मैंने पल के जोर से झपक कर उसे देखा। वो कोई इल्यूजन नहीं था, वो मेरी मेहरुन्निसा ही थी। हल्के आसमानी कमीज शलवार पहने, कंधे पर हम रंग दुपट्टा डाली, वो मोमो ही थी। इसका चेहरा पहले से कदरे मैच्योर लग रहा था। बाल अब वैसे लंबे नहीं थे, बल्कि कंधों से भी कदरे ऊपर थे। इसने भूरे बालों में ब्लॉन्ड स्ट्रैकिंग करवाई हुई थी और इनको कैचर में ऐसे बांध रखा था कि चंद लटे चेहरे की तरफ में बिखरी हुई थी। दरवाजा खुलने पर इसने सर उठाकर मुझे देखा। मोमो। इस लम्हे मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मुझे अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ था। मेरी मोमो, मेरी मेहरुन्निसा वापस आ गई। अस्सलाम वालेकुम सर। वो धीरे से मुस्कुराई। वालेकुम अस्सलाम। खुशी के मारे मुझसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। आओ अंदर आओ। मैंने रास्ता छोड़ दिया। वो आहिस्ता से चलती हुई अंदर आ गई। इसने अपने दाएं हाथ में कोई शय, तयशुदा कपड़ा उठा रखा था। मैंने ध्यान नहीं दिया। आओ बैठो। मैंने लिविंग रूम में रखे सोफे की जानिब इशारा किया। वो तारा अंदाज से अतराफ का जायजा लेती हुई निहायत नज़ाकत से सोफे पर बैठ गई। मैं जल्दी जल्दी इसके लिए कॉफी पीने लगा। अगर मैं चंद लम्हे पहले इसके कॉफी ना गिराता तो कम अज कम उसे देखा मरूब व मुतासिर कर सकता था। वो सोफे पर बैठी इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। अब मेरा लिविंग रूम पहले की निस्बत बेहद साफ सुथरा होता था। दफ्तर उसकी निगाह साइड टेबल पर रखी गोल्ड लीफ की डीप पेपर पड़ी। इसने चौंक कर मुझे देखा। ये छोड़ी नहीं है अभी तक? कॉफी फेंटते हुए मैं मुस्कुराया। बहुत कुछ छोड़ दिया है मोमो, पर उसको नहीं छोड़ा। इसने सर हिला दिया, मगर वो शायद मेरे लहजे पर गौर कर रही थी। इसके कप में दूध डालकर मैंने दोनों कप स्ट्रे में रखे, साथ शुगर पाउडर रखा और सेंटर टेबल पर लाकर ट्रे रख दी। इसने खुद ही आगे बढ़कर शुगर पाउडर डाली और 1 चम्मच मेरे कप में डालकर आधा अपने में। तुम्हें याद था मोमो? मेरे जहन, मेरे मन में
नगमे से गूंज उठे थे। मैं कुछ भूली ही कब हूँ। अपने कप में चम्मच हिलाते हुए पलकों की बाढ़ झुकाकर बोली, मैंने कॉफ़ी का घूंट भरा वो बनाई मैंने थी, मगर इसमें चीनी मोमो ने मिक्स की थी। एकदम से बहुत जायका आ गया था इसमें। कैसे हैं आप सर? चंद घूंट भर कर इसने सादगी से पूछा। वैसे ही जैसा तुम छोड़ कर गई थी। इसने गहरी सांस भरी और फिर इधर उधर देखा। आपकी वाइफ कहाँ है? सो रही हैं। मैं जल्दी आ गई ना। मैंने गौर से इसकी आंखों में देखा। मैंने शादी नहीं की मोमो। कॉफी का कप लबों की तरफ ले जाते हुए इसके हाथ यकदम साकित से हो गए। वो पलके झपकाए बगैर बेहद शॉक सी होकर मुझे देख रही थी। जी, मैंने शादी नहीं की। मैंने सर झटक कर दोहराया। फिर दफातन इसके लबों में जुम्बिश हुई। क्यों सर? मैंने शाने उचका दिए। कोई मिली नहीं। इसने सर झटका। मैंने बात का रुख बदल कर पूछा, कब से आई हो इधर? 7 या 8? नहीं, शायद 7। वो जहन में हिसाब करी थी। अच्छा, यानी हफ्ता हो गया। इसने गहरी सांस को अंदर खींचकर मुझे देखा, फिर नफी में गर्दन लाई। 8 दिन नहीं, 8 माह हो गए। मैंने बेयकीनी के आलम में कप मेज पर वापस रखा। तुम 8 माह से इधर ही हो? इधर नहीं, लाहौर में थी, पढ़ रही थी। एफएससी भी यहीं से की और कनाडा में पढ़ाई नहीं की। इसका चेहरा पल भर को तारीख सा होता। नहीं सर, दादो की डेथ के बाद कनाडा से वापस लाहौर आ गई थी। कनाडा से तो 2 साल बाद ही वापस आ गई थी। वहाँ पढ़ाई नहीं की थी। मुझे याद आ गया था मोमो, मुझे हैदर का बहुत। मैं पल भर को रुक कर कैसे इजाजत करूँ? वो तो मेरा दोस्त था। मैं कुछ नहीं कह पा रहा था। इसने सर झुका लिया। इसे क्या हुआ था मोमो? अंजाना का एक अटैक था। हम अस्पताल लेकर गए थे, मगर एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया। पापा की डेथ हो गई। मुझे चोटें आई थी। वो सर झुकाए बता रही थी। और तुम लोग कनाडा चले गए थे। मेरा इंतजार भी नहीं किया। मैंने शिकवा किया था। इसने सर उठाकर हैरान नजरों से मुझे देखा। इंतजार? पापा ने इंतजार ही तो किया था आपका। रोज सुबह शाम चक्कर लगाते थे वो आपके घर के, मगर आप नहीं आए। 2 माह तक वो आपके घर के चक्कर लगाते रहे। 2 माह बाद 60 दिन होते हैं उसमें सर। और फिर दादो ने भी आपका इंतजार किया था, लेकिन जब आपकी जानिब से बिल्कुल मायूस हो गई तो हम सभी खाला के साथ चले गए। वो कदर तौक़ुफ़ से ठंडी होती कॉफी पर निगाहें जमा कर बोली, आप कब आए थे सर? तुम्हारे जाने के अगले रोज। क्या आपने इन 10.5-11 सालों में इसके अंदाज में बरसों की मुसाफत की थकावट थी। मैंने आर्ट अकेडमी खोली, फिर पीएचडी की और अब अकेडमी के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ। आर्ट अकेडमी? इसने हैरत से मग मेज पे रखा। तुम्हें रंगों से खेलना अच्छा लगता था ना? मैंने तुम्हारे लिए अकेडमी खोली मोमो। मैं कर्ब से मुस्कुराया। तुम्हारे हाथ कहते थे कि तुम पेंटर बनोगी। मेरे हाथ तो ये भी कहते थे कि मैं सर्जन बनूंगी। तो उसने गोद में रखा सफेद सा कपड़ा मेरे सामने किया। वो एक ओवरऑल था मोमो। मेरे लबों से सिर्फ इतना ही निकला था, मैं पेंटर नहीं बन सकी सर, मैं सर्जन डॉक्टर बन गई हूँ। 1 बरस पहले तालीम से फारिग हुई हूँ। पहले कुछ अरसा गंगाराम में जॉब की, फिर इधर आ गई। तुम? मैं कुछ नहीं कह सका। इसने इन रंगों को भुला दिया था जिनसे मैंने पिछले इतने बरसों बेतहाशा मोहब्बत की थी। मैं पिछले कई बरस अपनी फितरत के खिलाफ भागती रही हूँ सर, और अब वो दुखी दिल से मुस्कुराई। अब थक गई हूँ, इसलिए वापस आ गई। तुम्हारे हस्बैंड और फैमिली? मैंने धड़कते दिल के साथ पूछा था। वो कितनी देर मेरी जानिब देखती रही, फिर नफी में सिर हिला दिया। मैंने शादी नहीं की। वो सर झुकाए बोली, इसकी आवाज में अजीब सी लर्जिश थी। क्यों? मुझे तमानियत भी हुई थी और हैरत भी। इसने पलके उठाकर शाकी नजरों से मुझे देखा। कोई मिला नहीं। फिर अपना ओवरऑल उठाकर वो खड़ी हो गई। चलती हूँ सर, आपकी एकेडमी आऊंगी। मैंने खड़े होते हुए कदरे दुख से इसके ओवरऑल को देखा। तुम्हें तो पेंटर बनना था मोमो। जिंदगी में सब कुछ गैर मुतवक्का ही होता है सर। वो मखमू अंदाज में कहकर दरवाजे की जानिब बढ़ गई। मोमो आधा दरवाजा खोलकर इसने पलटकर मुझे सवालिया निगाहों से देखा। मैंने सर झटका। कुछ नहीं कह डाले सर, आप हमेशा बातें अनकही छोड़ देते हैं। बहुत पुरसुकून अंदाज में बोली थी। तुम यकीन नहीं करोगी, वो खुलकर मुस्कुराई। क्या यही कहना चाहते हैं कि आप मेरे घर रोज शाम को 6 बजे आया करते थे? मैं मबहूत सा होकर उसे देखी गया। तुम्हें कैसे पता मोमो? बाज आदतें फितरतें बन जाती हैं सर। जब मैं सबीन खाला के गैर मानूस घर की गैर मानूस लाइब्रेरी में शाम 6 बजे आपके इंतजार में किताबें खोल लिया करती थी, तो आप तो फिर इन मानूस रस्तों पे सफर करते थे। कब तक आते रहे थे मेरे घर? 2 साल। उसने मुस्कुराकर मुझे देखा, फिर खुदा हाफिज कहकर बाहर निकल गई। मैं वहीं साकित सा खड़ा दरवाजे को देखता। इस शाम मैं अपनी क्लास को पढ़ा रहा था जब एकदम चटक कर रुक गया। मेरी निगाहें दरवाजे पर जमी। तमाम स्टूडेंट्स ने मेरी नजरों के ताक़ुब में दरवाजे को देखा। वहाँ एक दिलनशीन मुस्कुराहट लबों पर सजाए मोमो खड़ी थी। मैं आ जाऊँ सर? इसने शर्ट छुपाते हुए मासूमियत से पूछा। मैंने मुस्कुराते हुए सर को इस्पात में जुम्बिश दी। स्टूडेंट्स, ये आपकी नई क्लास फेलो हैं, डॉक्टर मेहरुन्निसा हैदर। मैंने इस नाजुक सी लड़की का तारुफ कराया। डॉक्टर साहिबा, ये मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। उम्मीद है कि आप उनको तंग नहीं करेंगी। मेरे लहजे की शरारत पर वो खिलखिलाकर हंस दी। बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं बैठ जाऊं सर? इसने बच्चों की तरह इजाजत मांगी। मैंने मुस्कुराहट छुपाकर इस बात में सर हिला दिया। वो कुर्सियों की जाने बढ़ गई। तमाम क्लास भरी हुई थी, कुर्सी सिर्फ एक ही खाली थी, खिड़की के साथ रखी लकड़ी की। वो कुर्सी जो दूसरे फर्नीचर से मैच नहीं करती थी। मोमो उस कुर्सी की जाने बढ़ गई। जिस लम्हे वहाँ बैठने लगी, साथ वाली निशस्त पर बैठी 18 साल आसमा ने परेशान होकर उसे रोका।
आप उधर ना बैठें। मोमो बैठते बैठते रुक गई, मगर यहाँ और कोई खाली ही नहीं है। ये क्या किसी की जगह है? अस्मा ने मेरे जानिब देखा और फिर आहिस्ता से मोमो को मुखातिब किया। ये सीट मोमो की है सर, इस पर किसी को नहीं बैठने देते। अस्मा की मध्यम सरगोशी मुझे सुनाई दे रही थी। मोमो ने बेहद चौंक कर अस्मा को देखा। सर की कोई छोटी सी बच्ची फ्रेंड थी, इसका निकनेम मोमो था। एकदम मोमो खुलकर मुस्कुराई और अपना पर्स उस कुर्सी के पास उसे लटका कर उस पर बैठ गई। तुम्हें पता है ये मेरी सीट है, इसने अस्मा को कहकर मेरी जानिब देखा। इसकी निगाहों में खुशी, बेयकीनी और तशक्कुर था। चंद स्टूडेंट्स ने परेशान सा होकर मोमो को देखा। इट्स ओके, ये मोमो की सीट है, बैठी रहो मोमो, मैंने मुस्कुरा कर कहा। मोमो बहुत खुश थी, मुझे समझ रही थी क्या वो मुझे बताने की जरूरत थी। क्लास खत्म होने के बाद मोमो मेरे पास आई। तमाम स्टूडेंट्स बाहर जा रहे थे, मैं अपनी चीजें समेट रहा था। सर आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? इसने अपना पर्स कंधे पे डालते हुए इस्तफसार किया। हाँ श्योर, मैंने अपना सामान समेट कर छोटे से बैग में डाला। अपने ख्याल के तहत पूछा, आई कैसे हो? टैक्सी से। मोमो ने बरहमी से उसे मैंने देखा। अगर तुम्हारे पास गाड़ी नहीं थी तो मुझे कह देती, मैं तुम्हें पिक कर लेता। टैक्सी में धक्के खाने की क्या जरूरत थी? अब खबरदार जो आइंदा तुमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज की तो। वो मुस्कुराते हुए मेरे साथ बाहर आ गई। तो आपको मेरी परवाह है सर? मैंने एक लम्हे को रुक कर उसे खफकी से देखा। क्या तुम्हें वाकई यकीन दिखाने की जरूरत है? नहीं सर, वो फौरन बोली। आई नो यू केयर। मैंने ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर फ्रंट सीट का लॉक खोलते हुए संजीदगी से उसे देखा। तुम मेरी जिंदगी में सबसे अहम शख्स हो मोमो, बल्कि मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही तो हो। वो मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ गई। रोज यूनिवर्सिटी जाते हुए मोमो को अस्पताल छोड़ देता और वापसी पर पिक भी कर लेता। इसका शेड्यूल रोज बदलता रहता था, मगर मैं हमेशा की तरह इसके लिए हाजिर रहता था। उस रोज जब उसकी 48 घंटे की ड्यूटी के अख्ताम पर मैं लेने गया तो वो बहुत थकी थकी लग रही थी। इतनी लंबी ड्यूटी मैंने फ्रंट सीट पर थकी हारी बैठी मोमो पर एक निगाह डाली। मेरी तो कल ही खत्म हो गई थी, मगर डॉक्टर अफशा को कहीं जाना था, इसलिए मैं इसकी जगह ड्यूटी कर रही थी। एक तो तुम्हारी मरवत थी ना, मुझे उस पर बेहद गुस्सा आया था। खवा मैं खवा दूसरों के पीछे खुद को हल्कान ना किया करो। तो क्या हो जाता है सर, हम दूसरों के काम आ जाएं, इससे बेहतर क्या बात हो सकती है? वो सहूलत से बोली। अफसानवी बात मत करो मोमो, खबरदार जो आइंदा तुमने किसी और की जगह ड्यूटी की। मैंने से गाड़ी आहिस्ता रोक कर कहा। बैंक करीबी था, मुझे बैंक से एक ड्राफ्ट निकलवाना था। तुम गाड़ी पार्क करो जरा, मैं अपना काम कर लूँ, बैंक बंद ही ना हो जाए। गाड़ी की चाबी से थमाकर मैं तेजी से निकला और तकरीबन भागता हुआ बैंक में दाखिल हुआ। 5 मिनट बाद ही जब मैं अपना काम खत्म करके बाहर आया तो पार्किंग एरिया में अजीब सा था। मेरा 10,000 का नुकसान कर दिया है आपने, अब मुझे बताएं मेरा नुकसान कौन पूरा करेगा? आपको गाड़ी नहीं ड्राइव करनी आती थी तो करती क्यों है? बेहतर है कि आप किसी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में जाकर चंद दिन कुछ सीख ही लें। मेरी सफेद करोला के सामने खड़ी मोमो चुपचाप निचला लब को चलते हुए एक दरमियानी उम्र के आदमी की डांट सुन रही थी। मैंने नगावारी से उसको देखा। क्या मसला है? मैंने कदरे सख्त लहजे में उस आदमी को मुखातिब किया। उस वसीले आदमी ने मुड़कर मुझे देखा। इन मोहतरमा ने अपनी गाड़ी रिवर्स करते हुए मेरी गाड़ी की बैक लाइट्स तोड़ दी। पना मैं मोहतरम एक मिनट, मुझे इनसे पूछ लेते। मैंने मोमो को देखा। हाँ बताओ क्या हुआ है? सर इनकी गलत फहमी हुई है, वो मेरी गाड़ी नहीं थी, वो वाली करोला थी। इसने अपनी दाएं जानिब वो मेरी करोला की सी मॉडल साफ रंग वाली गाड़ी की तरफ इशारा किया जिसमें से एक फैमिली निकल रही थी। दरमियानी उम्र के आदमी ने कदरे हैरत से देखा, फिर इस दूसरी सफेद करोला की जानिब बढ़ गया। सॉरी सर, माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हुई थी। चंद लम्हों बाद वो गसील आदमी झाग की तरह बैठकर हमसे माजरत कर रहा था। ठीक है सैयद मोरी से कहकर मैंने मोमो की गाड़ी में बैठने का इशारा किया। तमाम रास्ता मैं लब बीचते ड्राइविंग करता रहा। मुझे इस वक्त मोमो पर इतना गुस्सा चढ़ा था कि भीतर था मैं खामोशी रहता। इसके घर के स्याह आहनी गेट के बाहर गाड़ी रोक कर मैंने इसकी जानिब देखे बगैर कहा, खुदा हाफिज। इसने कदरे शर्मिंदगी से मुझे देखा। इसका बायां हाथ लॉक पर था, मगर इसने लॉक नहीं खोला। सर खुदा हाफिज। मैं बदस्तूर स्टीयरिंग व्हील को देख रहा था। नाराज हैं सर? इसकी आवाज़ घुटी घुटी सी थी। नाराज? मैंने एक झटके से इसकी जानिब चिरक किया। मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है मोमो। एक शख्स भरे बाजार में तुम्हारी इंसल्ट करता रहा और तुमको भी बनकर सुनती रही। जबरदस्त। मैं इसके खामोश होने का इंतजार कर रही थी। खुद से कोई खामोश नहीं हुआ करता मोमो, गलत कहने वाले को खामोश कराना पड़ता है। पर वो बोल रहा था, मैं बीच में कैसे बोलती? तुम अब बड़ी हो गई हो डॉक्टर मेहरुन्निसा। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर तुम सच्ची होने के बावजूद दूसरों की लान तान सुनती रहोगी तो इससे तुम्हारे खलील जबरान होने के अक़वाल सच्चे साबित नहीं हो जाएंगे, बल्कि लोग तुम्हें शर्मिंदा समझकर और ऊंचा बोलेंगे। खुद को डिफेंड करना सीखो मोमो। राइट सर। वो ताबेदारी से सर हिलाकर गाड़ी से उतर गई, मगर मुझे इल्म था कि मैं जितना सर पीट लूं वो कभी भी अपनी इस सबसे बड़ी कमजोरी पर काबू नहीं पा सकता।